معلوم ہو گئی ہوگی جو بات کرنی تھی وہ تو بات معلوم ہو گئی ہوگی. نہیں حافظ صاحب سے بات ہوئی تھی ایک دن آئے تھے سنیچر کو جمعرات کے دن آئے تھے گفتگو ہوئی تھی. مطلب یہی پوچھنا تھا کہ جیسے آپ میں سے کوئی بد مذہبوں کا نکاح پڑھاتے ہیں اس کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ جی دیوبندی وغیرہ وہابی وغیرہ کا. جی کیا موقف ہے آپ لوگوں کا؟ دیوبندی کسے کہتے ہیں اور وہابی کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ جی جو عبدالوہاب نجدی کا جو عقائد باطلہ پر جو اس پر رہے جی یہاں پر کرمان کتنے لوگ ہیں جو اس پہ عقیدے عمل کرتے ہیں اس کے نقش قدم پر ہیں؟ تو اس کا مطلب وہ یہ لوگ ان کے زمرے میں نہیں ہیں؟ نہیں وہ پوچھ رہا ہے مطلب ہم بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ لوگ ان کے زمرے میں نہیں ہیں. جو پوچھ رہا اس کے جواب نہیں عمل کر رہے ہیں وہ اپنے آپ تو یہ تو کہہ رہے ہیں میں وہابی ہوں میں دیوبندی ہوں تو کیا یہ لوگ ان کے زمرے میں نہیں ہوئے؟ وہابی ہونے جی جو یہ کہا جی وہابی ہے دیوبندی ہے اس سے پوچھے جی وہابی کا عقیدہ کیا ہے؟ نہیں وہ تو نہیں وہ اکثر لوگ جو کہتے ہیں پوچھو کہ تم وہابی ہو تو کس اعتبار سے وہابی کس کو کہتے ہیں اس کے عقیدے کیا ہے بالکل اسے پوچھو ٹھیک ہے. یہ تو بات صحیح ہے کہ اس کے جی تو بتاؤ وہابی کسے کہتے ہیں؟ جی فلاں کو کہتے ہیں وہابی. اس کا عقیدہ یہ ہے جی کہ نبی کے علم کو بچے پاگل کی طرف ماننا نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا. ٹھیک ہے تو آج کل کے جو پیچھے جی وہ تو خیر بات ہے سب تمام مسائل جی تمام مسائل اگر وہ تسلیم کرے گا جی تو سمجھو کہ وہ واقعتاً یہ دیوبندی ہے وہابی ہے. تو کیا مطلب آپ کی بات سے تو یہی پتہ چل رہی کہ جو آج کل وہابی ہیں وہ اس زمرے میں نہیں ہیں؟ زمرے میں نہیں ہے گمراہ ہے. تو گمراہ کے کیا نکاح پڑھا سکتے ہیں؟ گمراہ ہے تو گمراہ کے نکاح بتایا جائے تو گمراہ کے بھی تو وہی حکم ہے جو وہابی کا حکم ہے. تو یہ سب باتیں جی آپ کے گھر میں بھی دیکھنا چاہیے نا. گھر میں دیکھنا چاہیے کیا دیکھیں گھر میں جیسے کہ تمہارے پھوپھو ہے میرا خاندان جیسے کہ شمشاد ہے جیسے تمہارے دادا ہوئے. آپ ایک مقتدی ہیں ایک امام کے ہیں. کون آپ ایک امام ہیں آپ قوم کے رہبر ہیں. جب آپ گریں گے تو پھر قوم کہاں جائے گی؟ تو بتاؤ یہ مسجد میں بتانا چاہیے نا. آپ کو پہلے سنبھالنا پڑے گا. پہلے ہمیں سنبھالیں گے تبھی تو میری قوم میری آنے والی نسلیں سنبھلے گی. سنبھال بھی رہے یہ تو پھر زبردستی والی بات ہوئی شریعت میں. یہ کوئی نہیں ہم سنبھلے ہوئے ہیں نکاح پڑھائے جا رہے ہیں ہم سنبھلے ہوئے ہیں. یہ کوئی بات ہوئی حضرت کہ ہم نکاح پڑھا رہے ہیں ہم سنبھلے ہوئے ہیں ایسا تھوڑی ہے. کس کا نکاح پڑھائے گا؟ جتنے وہابی ہیں سب کا نکاح تو قریب جو غالباً آپ ہی پڑھائے آپ ہی لوگ دونوں پڑھائے ان کو کوئی بھی ایک سنی ایک وہابی ان کا نکاح پڑھائے گا. جی وہ ایک اور مثال دے گا تب. جی مثال ہم کیا دیں؟ جیسے میری بچی ہے یہ وہابی ہے اس کے ساتھ میں نے نکاح پڑھا دیا تو دکھائے گا مطلب نہیں. بہت سارے لوگ ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں کیا گنائیں گے؟ بہت سارے میں ایک اٹھو ہوگا کہ نہیں. ہم کوئی گنائیں گے نہیں. آپ جن لوگوں کا نکاح پڑھائے ہوں گے تو خبر میں پڑھا رہا ہوں تو مجھے پتہ ہی ہے کہ کون کیسے پتہ نہیں کرو یہ پورے کرمان کتنے ایک اور کو معلوم ہے کہ فلاں آدمی فلاں ہے یہ میرا چچا ہے میرا بھتیجا ہے میرا بھائی لگتا ہے. ایک اور سے پتہ ہے. ہم کسی کا نام نہیں لیں گے نام کسی کا بتائیں گے. آپ بخوبی جانتے ہیں نکاح پڑھانے جاتے ہوں گے بخوبی جانتے ہیں. کیوں نہیں جانا؟ آپ لوگ کو تو تحقیق ہونی چاہیے میں کس کا نکاح پڑھانے جا رہا ہوں. وہ عقیدے تو آپ کو تحقیق ہے تو پھر آپ کیسے نکاح پڑھا دیے؟ کس کا بتائے گا تم پھر وہی بات دیوبندی کر رہا ہے. کیا ہم تو مانگ رہے ہیں نا. جی کس کا
बहुत लोग आपने निकाह पढ़ाया, नेता के खानदान के अक्सर लोगों का निकाह आपने पढ़ाया, दोनों तरफ से भाभी का। हाँ, नेता के एक भी खानदान ने पढ़ाया। फिर उस टोले का भी आपने पढ़ाया, फिर हमारे घर के बगल में आप ही लोगों में से कोई पढ़ाया। किसका? नियाज फेंकना टेकना, फिर उसके बाद सरफराज की बहन वगैरह। तो नहीं। किसने पढ़ाया? सरफराज की बहन की मौजूदगी में तो फिर मैं नहीं देखा। कौन सरफराज? वो मेरे घर सटा हो बगल में, इस तरफ वाले जो हैं, वो करीब करीब अक्सर देवबंदियों की निकाह आप ही दोनों में से किसी ने पढ़ाया है जी। ये पता है, किसी किसी के छोड़े होंगे वो अलग बात है, मगर जो शरीयत का हुक्म है वो हुक्म है, वो ये आपकी वजह से जी। कौन सी शरीयत में लिखा है? जिस शरीयत में हम लोग चल रहे हैं उसी शरीयत पे लिखा है, आला हज़रत के शरीयत पे लिखा है। उसके मसाइल पर मान लिया। अपना अमल, अपना किरदार दिखाओ। जी हाँ, क्या अमल अपना अमल है? वहाँ भी उसे लेन देन करना चाहिए, वहाँ भी उसे उठ बैठन करना चाहिए। उसूल फरा तो मालूम है, उसूल जो होता है वो उसूल जो होता है उस पर चलना हक है। उस उसूल को अगर आप छोड़ रहे हैं तो वो उस पर जो है छोड़ना कुफ्र है, और फरा को छोड़ रहे हैं तो कोई कराहत नहीं है। क्या उनके दुकान से अगर मैं सामान ले रहा हूँ तो क्या ये कुफ्र है? क्या कोई साबित कर दीजिए आप कुफ्र है। उससे उठना बैठना कैसा है? आला हज़रत का फतवा, आला हज़रत फतवा मना फरमाइए, कुफ्र नहीं है। और निकाह पढ़ना सरासर कुफ्र है, हज़ारों फतवा दे सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। उसके साथ रिश्ता करना बिल्कुल हराम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे दादा ने लोग बिल्कुल, हाँ, मैं हराम करार देता हूँ। मेरे नाना भी जितने बहनों के साथ बेटियों को शादी किया, हम मैंने बिल्कुल कहा तौबा किया। दादा तो क्यों तौबा करेंगे? कराया तो कुफ्र नहीं हुआ। तो दादा पर कुफ्र थोड़ी लौटेगा। किस पर लौटेगा? दादा उनकी बेटी पर लौटेगा। उनकी बेटी काफिरा होगी, मुर्तद होगी जी। आप वली बने हैं, आप करा रहे हैं जी, आप पर कुफ्र का फतवा नहीं आएगा। हराम है काम, कुफ्र नहीं है। वही जी, हराम काम है, कुफ्र नहीं है। तुमने वो निकाह हो गया, वो तो कुफ्र हुआ। जो करा दिया वो तो नहीं हुआ। नहीं, वली पर कुफ्र नहीं लौटता है। कुफ्र नहीं लौटता है जी। तो जहाँ भी निकाह पढ़ाया तो नाके हुआ वो जी। वो नाके हुआ, नाके मतलब निकाह पढ़ाने वाला जी, काजी हुआ, बिल्कुल नाके हुआ। वो वली हुआ कि नहीं हुआ? काजी आला एक काजी जी वली हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, बना हुक्म वकील हो सकता है, बिल्कुल। वो वकील भी हुआ जी है जी, और काजी भी हुआ जी। तो वकील पर कुफ्र है कि नहीं? इसके मुतालिक मुझे मसला पता नहीं है, वकील के बारे में या काजी के बारे में। तो एक दो बात पढ़ लेने से नहीं होता है। एक दो पढ़ने की बात नहीं है हजरत, मैंने जबरन पढ़ लेने से नहीं होता है, सारे मामलात को देखा जाता है। तो हजरत हम कुफ्र करते चले जाएं? सुनो, कुफ्र की बात नहीं है जी, है ना। मसला सिर्फ तुम्हें को मालूम नहीं है, हम लोग को भी मालूम है। मुझे पता है, हम लोग भी बगैर पढ़े यहाँ पर नहीं आए, मुझे पता है जी। समझ रहा है जी, कुफ्र नहीं है। इस्लाम इस तरह नहीं फैलता है। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने किन किन अपनी बेटियों के किन किन लोगों से निकाह किया पता है जी है? और आला हजरत का ये फतवा कब का है पता है? उस वक्त आला हजरत के जमाने में जी, जो ऐसे माहौलात थे, समझे न, सिचुएशन ही ऐसा था जी, सिचुएशन ही ऐसा था जिसकी वजह से आला हजरत ने ऐसे लोगों को मना किया कि ना उसके साथ उठ बैठ कर सकते हो, ना उससे मुसाफा कर सकते हो, ना उससे बात कर सकते हो। आला हजरत ने अशरफ अली थानवी को भी खत लिखा था, पता है? जी बिल्कुल। तो कुफ्र के खत लिखना या गुफ्तगू करना या उनके अकायद को उनके तक बताना या उनकी किताब की गलतियां बताना, ये कुफ्र थोड़ी है, कुफ्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है। खत लिख के उनसे गुफ्तगू किए, उनसे राय रास्ता बनाने के लिए सारी चीज के तबादले ख्याल किए, ये सब कुछ नहीं है। जब मुनाजरा होता था क्या आमने सामने दोनों फरीकैन बैठते हैं तो क्या दोनों कुफ्र हो जाता है? वो बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो भी तो गुफ्तगू ही किए। खत लिखे और क्या कहा खत में? आपने आपकी इबारत ये गलत इबारतें हैं, ये कहा था, बिल्कुल ऐसा नहीं। आपने इसके इबारत की तस्हीह नहीं किया था उन्होंने जी, समझे ना, इबारत की तस्हीह नहीं किया था। उस खत को मंगवा लो नेट के जरिए से और पढ़ लेना उसको। उस वक्त आला हज़रत के ज़माने में ऐसा सिचुएशन ही था जो
मजहब इस्लाम पर उंगली उठाई जा रही थी, समझे? जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर होने पर उंगली उठाई जा रही थी, जी है ना? उनके इल्म गैब पर उंगली उठाई जा रही थी। माहौल ही ऐसा बन गया था जिसकी वजह से आला हज़रत ने ऐसा फतवा दिया। तो आजकल के ज़माने के जो वहाबी हैं, हाँ, गुमराहियत को मिटाना ये कुफ्र नहीं है। जब तक आप उससे मिलेंगे जुलेंगे नहीं, उसको बताएंगे नहीं अपनी बात, उसको कैसे समझ में आएगा? आज मस्जिद की तामीर हो गई, जी खपड़ियाल की मस्जिद थी, जी सजदा करने की जगह नहीं थी, आज मस्जिद बन गई हम लोग के रहने की वजह से। ये शरीयत नहीं है। मदरसा तो मंजिला हो गया, ये शरीयत नहीं है, शरीयत का काम नहीं हो रहा है। आज भी आज के हालात के हिसाब से फतवा आप जो जुलूस है, मोहम्मदी से सारे लोग नाआशना थे, ये शरीयत नहीं है। मस्जिद बनाना फ़र्ज़ आइन नहीं था, ईमान बचाना फ़र्ज़ आइन इस वक्त मस्जिद बनाना फर्ज नहीं है, नहीं है, मस्जिद बनाना फर्ज नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो क्या किया जाए मस्जिद को? मस्जिद जैसी थी वैसी थी, आपने बनाया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसका शुक्रगुजार हूँ, मगर इसका मतलब ये ये नहीं शरीयत कि का काम नहीं है। शरीयत का काम हम ये नहीं करें, उससे बनाना नहीं कह रहे कि फ़र्ज़ आइन शरीयत था। पर नहीं कर रहे, हम शरीयत की बातें करना चाहते हैं। हम तो शरीयत किस चीज़ की बात करते हैं? आप ये बता हम लोग दीजिए, तरीक़त की बात करते हैं सिर्फ। आप ये मसला हमको सीख बता दीजिए, आजकल के जो वहाबी हैं, आजकल के जो वहाबी है, उनका मैं निकाह अगर पढ़ाता हूँ तो क्या मुझ पर कुफ्र आएगा या नहीं? ये फतवा मंगा लो। इस हवाले से आला हज़रत लिख चुके हैं, कई फतावे लिख चुके हैं खुद फतवा अपने। मंगा लो। ठीक है, मंगा लेता हूँ कि जो है कौम पूरी जाहिल है, कुछ नहीं जानती, उसको क्या पता मंगा है लो। देवबंदी वहाबी क्या होता है। उसके बाद अगर कोई शख्स सुन्नी आलिम उसको निकाह पढ़ा तो क्या हुक्म है? ऐसी कोई बात नहीं है बाबू, समझे? आप यहाँ हजरत बहुत ही जिस जब एहतियात तक के साथ कदमा में मजहब इस्लाम का काम हो रहा है, दीन का काम जो हो रहा है बहुत ही एहतियात के साथ हो रहा है। देख रहा हूँ, हाँ, ऐसी बात नहीं है। और ऐसे माहौल में शाना बशाना मिला के चलने ही में भलाई है। तो कम से कम हमारी हजरत तादाद कम है बाबू, हम बात समझो। समझ रहे हैं जी। हाँ, हम उससे बायकाट होके चलेंगे तो एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। ठीक, हम बायकाट नहीं, आपको ये नहीं करेंगे हर चीज़ में आप जो है अलग कर नहीं हो दीजिए। पाएंगे हम आपको ये नहीं करें एक चीज़ में आप उससे बायकाट होकर के हम दीन का काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी तादाद एक आटे में नमक की मिसल है। क्या? जी बिल्कुल, एक आटे में नमक की मिसल है। और दूसरी बात यह है कि हमारे लोग दबंग नहीं है। जी बिल्कुल, हमारे लोग दबंग नहीं है, दबंग वो लोग हैं। जहां पर हम दबंग हैं वहां जाके देखो सुन्नियत का बोलबाला, बिल्कुल मुंह पर सुअर और कुत्ता कहता है। हमारे यहाँ मुंह पर सुअर और कुत्ता कहता है, सही बात है। मुंह पर। हजरत हम वो कहना नहीं चाहते हैं, बयान दोहल कहता है हजरत, मुंह पर, माइक पर, एक लाउड स्पीकर पे नहीं, 10-10, 12-12, 16-16 लाउड स्पीकर लगा रहता है और वहां बोला जाता है। वहां इसलिए बोल पाएंगे? यहाँ नहीं बोल पाएंगे। वो ठीक है, आप मत बोलिए या कोई भी ना बोले, हम इस चीज़ को ये नहीं कह रहे हैं कि आप लेकिन बयान अगर तो बात जी इस्लाह की, जी अल्हम्दुलिल्लाह नूर जामे मस्जिद में इस्लाह की बातें होती है, ऐसी बात नहीं है। अब रह गई बात हमारा काम करने का था, हमने कहा, तो उसके बावजूद अगर आप रिश्ता कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? वो आपका तो फर्ज खत्म हो गया, वो बात ठीक अब क्या है। कर सकते हैं? अब आप कहेंगे कि नहीं आप रह करके आप ऐसा कर रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे? हमने तो कह दिया कि उसे निकाह ना करें, उससे रिश्ता ना करें, फिर वही हमारा ही आदमी कहता है उससे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? हमारे पास आदमी नहीं है। आज हम सुन्नियत के लिए कितना दौड़ भाग कर रहे हैं, कहीं मिल ही नहीं रहा है। यही हमारे इलियास एक जमाना से रुका हुआ था। ये देखिए, उल्टियों करे जा सीता बनाओ करे जा सुयाव दबा दे नहीं मोने जा जेर मुड़ा आने दे मत हम आप
कब तक दिन सर आइए हम उस तरह करना नहीं चाहते हैं। इससे क्या होगा कि इंतजार पैदा होगा, कितना की होगा। मार मारने से यहाँ सुधार नहीं होगा। जी। है ना? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि तुम एक आलिम बन रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह आलिम बन ही गया है लगभग, है ना? अपने इल्म को उजागर करने की इब्तिदा इस्लाह माशरा से, जी है ना? जी अपने इल्म की उजागर की इब्तिदा जी इस्लाह माशरा से, क्योंकि मज़हब इस्लाम की अशात और तरवीज अखलाक के ज़ोर पर, अखलाक और किरदार से। जी आका अलैहिस्सलाम अकेले थे, जी बाकी सब कुफ्र ही कुफ्र था। बिल्कुल। जी आपने सबको दावत दिया, खस्सी बनाया, रान खिलाया, गोश्त पका, आपने खिलाया, काफिरों को दावत दिया, जी काफिरों को दावत दिया और अपने अखलाक के जरिए से अपनी बात रखे जी और इस तरीके से इस्लाम फैलता चला गया। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया के कोई ऐसा गोशा नहीं है जहाँ पर मजहब इस्लाम की आवाज़ बुलंद नहीं है। क्या हज़रत? मसला ये मैं पूछना यहाँ चाहता हूँ। सिर्फ सुनो, यहाँ अपने उस्ताद और एक आलिम की इस्लाह मत करो। मैं इस्लाम नहीं बात कर ये रहा है, हूँ। हाँ, बिल्कुल इस्लाह मत करो। नहीं, मैं अभी इस लायक नहीं हो जी जो नसीहत गो बनो, जी है ना? मैं इस्लाम भी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मसला पूछ रहा हूँ कि आजकल के वहाबी हैं तो इनका निकाह जो है पढ़ाया जा सकता है या और भी मामलात किए जा सकते हैं। आजकल के वहाबी और देवबंदी बात, वहाबी आजकल का रहे या पहले ज़माने के रहे, जी वहाबी वहाबी है ना? उसके अकीदे पर डिपेंड पड़ता है, जी उसके अकीदे पर डिपेंड पड़ता है ना? अभी तुम्हारे भाई शहबाज, जी है ना, जी और भी भाई है जी ना? चाहे वो बोंगवा ले लो, सरफराज ने क्या नाम है, सरफराज, उससे जाके पूछना, उससे जाके कहना कि नबी पागल थे, तो वो कहेगा क्या बात कर रहे हैं हम, जी नबी जादूगर थे रे, उल्टा आप पर गुस्सा है। उसको कहना कि नबी के इल्म में गायब है कि नहीं है, कैसे नहीं है। उसको कहना नबी हमारी तरह है रे, हाँ हमारा रंग करना, तो तुरंत कहेगा। जी बिल्कुल। पता क्या चला उसको मालूम नहीं है, पता चला तो मालूम नहीं है। चल रहा है, एक तो नाम पड़ गया है देवबंदी और एक तो बरेलवी, ये नाम पड़ गया है। बाकी बदमाश, बाकी अकीदे पर जो कुफ्र का फतवा है वो कौन है? वो मौलवी सर जो भूत बना हुआ है। नहीं, आजकल के जो वहाबी हैं ये अपने मस्जिद में बताते ज़रूर हैं कि देवबंद जो नहीं बरेलवी होता है, नहीं बताता है। तो ये अगर छोटे बताता छोटे मैं अगर बताता, अगर नहीं सुनिए सुनो हम बता रहे नुक्ते की बात बता रहा हूँ, तुम्हारी इस्लाह कर रहा हूँ, जी है ना? अगर वो बताता ना, अपनी किताबों में तरमीम नहीं करता, वो भी जान रहा है ना, वो भी जान रहा है कि ये गलत है। नए एडिशन में कहीं दिखा दो, बात ठीक है, मगर आजकल ये लोग वहाबी अपनी मसाजिद में ये तकरीर करके ज़रूर बताते हैं कि सुन्नी जो फातिया करते हैं ये गलत है, तभी तो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं अरे ये फातिया करते हैं, ये शिर्क है। बिल्कुल मैंने सुना अपने आंखों कानों से, नहीं बताता है। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे बताते हैं। तब मैंने सुना कि लग रहा है कि मस्जिद में कुछ जरूर बताया जाता है, तब इनके बारे में बच्चे बोल रहे हैं। वो बताता क्या है, बता वो नहीं बताता, सुना नहीं। अगर अब पहले सब लोग फातिया पढ़ते थे, बताता है कि मज़ारों पे जाकर के सजदा ना करो, वो तो बताता ही है, मगर वो लोग ये बात तो हम भी कहते हैं कि मज़ार पे जाकर सजदा ना करो। बिल्कुल, मगर वो लोग ये भी कहते हैं कि हमारे नज़दीक बरेलवी मुसलमान, हमारे नज़दीक मुसलमान ने एक काफिर जरूर मानता है, तो इस बुनियाद पर वो खुद काफिर है और इस बुनियाद पर आप निकाह पढ़ाएंगे तो फिर आप पर भी कुफ्र लौटेगा। नहीं करता, एक बात को मानो, नहीं करता। मैं नहीं मानता। वो ये कहता है कि बरेलवी हमको काफिर करता है, नहीं, हम किसी को काफिर नहीं करते, नहीं वो ये बताता है।
وہ اکثر آپ کسی اب طالب علم سے پوچھیے، یہاں کے جو بچے پڑھنے جاتے ہیں ان سے پوچھیے تو کیا بریلوی ٹھیک ٹھاک ہے، وہ خود کیا کہہ رہے ہیں قبر پجوا ہے، مشرک ہے، اس کا مطلب کیا؟ ہاں تو یہ تو بتاتا وہ فاتحہ کرنا غلط ہے، مزارہ پہ جا کر کے سجدہ کرتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے، وہ بتاتا ہے سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بات تو ہم بھی بتاتے ہیں کہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ سجدہ کا ذکر تو زکیہ اعلیٰ حضرت میں لکھا نا، سجدہ کرنا حرام ہے، وہ تو بہت تاریخی بات ہے، وہ نہیں بتا رہا ہے۔ تو آج کل کے وہابی کے مطلب نکاح پڑھا جا سکتا ہے؟ آج کل کا ہاں نہیں جواب کل کا دیجیے، رہے، یہ نہیں پڑھا سکتے، یہی نا؟ آج کا رہے چاہے کل کا رہے چاہے پرانا رہے، وہابی کا نکاح نہیں پڑھا جاتا، نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو جن لوگ جو اس بات سے ناشنا ہے، جی سمجھے، یہ اس بات سے ناشنا ہے، اس کو آشنا کرو، آشنا کر کے آپ پڑھا سکتے۔ ہم تو اپنے مذہب کے اس کو باضابطہ کلمہ پڑھاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں۔ کلمہ تو سب لوگ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے نہ پڑھنے سے تھوڑی ہوتا ہے۔ اگر تو آج کل کے وہابی کے نکاح پڑھایا جا سکتا ہے، اس کا مطلب اس کو کچھ پتہ نہیں، پھر بھی نکاح پڑھایا جا سکتا نا آپ کے کہنے کے مطابق؟ اس کو کچھ پتہ نہیں، وہی پھر بھی پڑھا جا سکتا جو ہے۔ جلسہ ہوا تھا کہاں؟ بھٹھا میں، جی شامل تھا مولانا صغیر احمد جوکن پوری آئے تھے، اچھا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ میں نے نہیں سنا، نہیں سنا، ریکارڈ ہوگا تو سن لینا۔ کیا کہے؟ انہوں نے بیان دوہل کہا مائک پر جی کہ اس علاقے میں وہابی دیوبندی جو ہیں جی وہ سارے لوگ گمراہ ہیں، وہ ناشنا ہے اس بات سے، وہ وہابی دیوبندی نہیں ہے، تو کھلے لفظوں میں کہا۔ تو ان لوگوں کا نکاح پڑھایا جا سکتا ہے؟ ہاں یہ نہیں، یہ جواب دیجیے۔ یہ فتویٰ منگا لینا ہے، تو جس بات سے ناشنا آپ لکھ کر دیجیے، فتویٰ لکھ کر، اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سوال نامہ جو ہے لکھ کر کے دیجیے آپ، پھر اس کے بعد وہ پیش بتا دے رہے ہیں، کریں۔ فتویٰ لکھ لینا استفتاء نامہ کہ جو ان تمام باتوں سے ناشنا ہو، جی ایسے لوگوں کا نکاح پڑھانا کیسا ہے، ظاہر کر دینا۔ جی علم غیب، نشہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جی وغیرہ۔ مگر اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضرت کی عبارت میں نے پڑھا کہ اگر وہ جو ہے ناآشنا ہے، وہ اپنے آپ کو ضرور کہتا کہ میں وہابی ہوں، تو بھی اس کا نکاح پڑھانا جائز نہیں، پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو اعلیٰ حضرت نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت فتویٰ تو ماننا پڑے گا حضرت، اگر فتویٰ کا نہیں مانتے تو بھی جو ہے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ تو بہت کچھ ہے، تو کچھ سب عمل کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بہت کچھ ہے، وہ تو اٹھنے بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو اتنا یہاں پر نہیں ہو سکتا، تو کم سے کم جس سے کفر، جس سے کہتے ہیں اصول ہوتا ہے، سے بھی منع فرمایا ہے، اصول جو ہوتا ہے اصول پر عمل کرنا واجب ہے، ضروری ہے اصول اور فروع کی بات نہیں ہے۔ جی، اور یہ عام بیٹھنا، اس کے گھر میں فاتحہ پڑھنا، میلاد پڑھنا، اس سے کفر لازم نہیں آتا ہے، اور نکاح پڑھانا۔ اگر آپ کو فاتحہ کروانے کے لیے بلایا جی تو کیا کیسا ہے؟ تو فاتحہ کرنے سے کوئی کفر لازم نہیں آتا ہے، میرا شریف بالکل کوئی قرات نہیں، اس کے بارے میں کوئی قرات نہیں۔ ہاں اگر یہی تو کرتا ہے، نکاح جو پڑھاتے ہیں یہ کفر ہے سراسر۔ اعلیٰ حضرت نے یہ متعدد جو ہے اکثر فتاوے کے اندر یہی موجود ہے، کوئی بھی ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، گوار، اسے کچھ پتہ نہیں، کلمہ بھی پتہ نہیں ہے، تب بھی آپ نکاح پڑھا کہہ رہا وہ اپنے آپ ضرور کہہ رہا میں دیوبندی ہوں، تو بھی کفر ہے۔ اس کے بارے میں کیا جواب ہوگا آپ کا؟ بالکل نکاح پڑھانے والا جو ہے کافر ہے، پھر اس کو ایسا تو ہم لوگوں نے نہیں کیا، ہم نے باضابطہ اس کو صاف کر کے، اس کا بھی نکاح پڑھایا، باضابطہ صاف کر کے پڑھایا، کیا تجدید ایمان کے ساتھ۔ تو کلمہ پڑھا لیا تجدید ایمان ہو گیا، تو کلمہ پڑھا تجدید ایمان ہو گیا۔ آپ تو یہ نہیں کہے کہ میں وہابیوں سے جو ان کے جو باطل عقائد ہیں میں ان سے جو ہے انکار کرتا ہوں، ساری چیز صاف کرنے کا۔ یہ تو اب بات گھومنے لگے تو بات گھما رہے ہیں آپ، ایسا نہیں۔ اب آپ جان گئے کہ اب معاملے پکڑ میں آ گیا تو آپ کرے سب پڑھ کراتے، یہ کوئی سی بات ہو؟ پہلے کہہ دینا چاہیے میں سب کراتا ہوں، یہ شریعت پر حضرت نہیں چلے گا، شاگرد استاد
جو شریعت ہے وہ شریعت ہی رہے گا شریعت ہے جی شریعت کے نہ دائرے نہ ہمارے سے نہ ہم سے بدلے گا نہ آپ سے بدلے گا شریعت ہم لوگ جی شریعت کے ہم لوگ دائرے میں ہیں بالکل شریعت سے ہم لوگ باہر نہیں ہوتے کیونکہ مسائل سے واقفیت ہم بھی رکھتے ہیں پہلے آپ نے کچھ اور کہا آپ نے ابھی بات بدل کر کے ارے پڑھا یہ کرتے ہیں ایسا تھوڑی ہوتا ہے آپ بات بدل دیے اس کے تجدید ایمان پر نہیں پڑھا سکتے ہیں کلمہ پڑھانے سے تجدید ایمان نہیں ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ لاکھ بار کلمہ پڑھے وہ مسلمان نہیں ہے اور اس دور میں جو یہ کہے کہ میں توبہ کیا استغفار کیا اس کے بعد کلمہ پڑھا وہ تجدید ایمان تب نہیں تو مشرک کو بھی نکاح پڑھا سکتے ہیں ہاں اس کو مسلمان بنا کے نہیں پڑھا سکتے اس کو کیا مشرک کہاں سے رہا وہ آپ کو یہ کہلوانا پڑے گا کہ آج جو وہابی دیوبندی ہیں جو ان کے کفریات عقائد ہے میں ان سے رجوع کرتا ہوں اور مسئلے کے حقہ پر میں کچھ نہیں کہی جاتی ہے کچھ نہیں کہی جاتی ہے آپ اس وقت تک کہہ رہے ہیں پہلے کہہ دینا چاہیے میں سارے کہتا ہوں جب بات پکڑ میں آ گئے تب کہہ رہے ہیں ہاں کہتا ہوں یہ کوئی بات ہوئی پکڑنے والا کون ہے بالکل بول رہا ہوں نہیں تو شریعت میں کوئی راستہ مت پکڑنے والا کون ہے شریعت میں راستہ مت نکالیے شریعت میں راستہ ہم لوگ نہیں نکالتے راستہ تم ہی نکال رہے راستہ میں نے نکالا میں شریعت پر ہوں الحمدللہ اور اپنے استاد کے قول ساری بات مسجد میں کرنا چاہیے نا ساری ہم جوہلا کے سامنے کیا کریں جوہلا کیا سمجھتے کیا جانتا ہے آپ اب جو جاہل کیا سمجھتا ہے کیا کر رہے ہیں مولانا صاحب آپ عالم ہیں آپ عالم ہیں آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں ہم بھی جاہل تھے تو ہم کو پتہ نہیں تھا آپ کیا کر رہے ہیں اب مجھے اللہ کے فضل سے جو بھی استاذ نے سکھایا تو سیکھا میں اور آپ دیکھ میں اب جو میرے استاذ نے سکھایا اس کے خلاف آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے میں آپ وہابیوں کو نکاح پڑھا رہے ہیں دیوبندی نکاح پڑھا رہے ہیں ہر چیز پہ کر رہے ہیں نکاح نہیں پڑھا سکتے جو وہابی اپنے آپ کو کہے وہ اس سے نکاح نہیں پڑھایا جا سکتا چاہے وہ کلمہ پڑھائے چل جو بھی ہو چاہے وہ آپ لاکھ بار کلمہ پڑھا لیں اس کو یہ کہنا پڑے گا آج اس وقت کا جو مسلک ہے جس کا نام مشہور ہے مسلک اعلیٰ حضرت اس حقہ کو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں میں اس پر چلوں گا اور اسی پر ہو اعلیٰ حضرت کوئی مسلک نہیں ہے بالکل مسلک نہیں ہے پہچان ہے اعلیٰ حضرت مسلک جی امام اعظم کے مسلک پہچان ہے بالکل اس دور کے حساب سے کوئی مسلک نہیں ہے جی مسلک تو صحابہ کا ہے دیکھو دین کی اصلاح کرنی ہے تو شریعت میں راستہ نکالیں گے کیسا راستہ یہ تو کہنا چاہ رہا ہے یہ گھما کے بتانا چاہتے ہیں آپ کیسا راستہ بتائے گا تب وہی راستہ جو جیسے من کرے گا ویسے ہم چلائیں گے میرے حساب سے شریعت چلے گی ہم مولانا ہے تو ہم چلائیں گے یہی تو کہنا چاہتے ہیں یعنی اتنی کتابیں جو بھری پڑی ہیں اور اتنی کتابیں جو میں نے پڑھا وہ ساری باتوں کو بالائے طاق کر کے بالائے طاق تو رکھی گئی ہے اگر بالائے طاق نہ ہوتی تو آج ہم لوگ اس سے جو ہے اس دور تک نہیں پہنچتے غلط ہو رہے ہیں کہ کیا ہو رہے ہیں ہم سے پتہ نہیں ہے نا کیا ہو رہا ہے سارے کام غلط ہو رہے ہیں اگر غلط نہیں ہوتا تو پھر مجھے یہاں پہ کیا آنے کا آپ سے کیا بات کرنے گفتگو کرنے کی کیا ضرورت پڑتی اور کیا لوگ آپ سے جو ہے دوری اختیار کرتے علماء ہاں صرف یہیں کے علاقے کی بات کر رہا ہوں یہ ایسے لوگ جو ہے دور یا آپ سے اختیار کیے ہوئے ہیں کون دوری اختیار کیا ہوا ہے کوئی بھی ہو یہاں پہ وجہ میں جانتا ہوں کیا ہے معاملہ ہے مگر جہاں میں پڑھائی کرتا ہوں وہاں ہزاروں لاکھوں علماء ہیں ہزاروں قریب ہر گھر میں علماء ہیں سب جو ہے وہاں مدرسے سے اور وہاں کے مدرسین سب رابطہ رکھے ہوئے ہیں کیوں رکھے ہوئے ہیں صحیح سے صحیح پہ چل رہے ہیں سیدھے راستے پر چل رہے ہیں جب آپ غلط کریں گے یہاں جو دور ہے کون عالم ہے جو ہم دوست دور ہے اور اس کی وجہ علت کیا ہے میں خود دوری اختیار کر لیا میں اس بات میں سوچا کہ ارے میرے استاد ہیں کیا غلط تو نہیں کر سکتے پھر بعد میں جب علم ہوا کہ ارے مسائل تو ایسا ہے مگر اس کے میرے استاد نے جو بتایا اسے استاد کے مسائل کے خلاف کام کر رہے ہیں یہ لوگ تو پھر میں نے بھی دوری اختیار کیا بالکل شریعت میرے وہ استاد نے بتایا یہ اپنے گڑھ کے نہیں ہمارے بتایا کے خلاف نہیں ہو رہا ہے تمہارے استاد کے خلاف ہو رہا ہے آپ جو وہی جو پڑھائیں گے میرے استاد وہی آپ ہی پڑھیں آپ بھی پڑھائیں گے مگر آپ اس کے کام کے خلاف چل رہے ہیں نا ہم کیا آپ کو بتائیں گے ہمارے خلاف ہو رہا ہے شریعت کے خلاف ہو رہا ہے وہاں خلاف ہو رہا ہے شریعت کے خلاف ہو رہا ہے آپ کے خلاف کوئی خلاف نہیں ہو رہا ہے شریعت کا یہ بات جان لینا شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی ہے
और अगर उस पर हुट्ठी के तरफ तुला रहेगा तो ये अलग बात है। हजरत भाई हुट्ठी की आपको तरफ तुल करके उसका रास्ता निकलना, आपने ऐसा किया है, आपने ऐसा किया है, वो नहीं चलेगा। एक बीवी ने कहा है ना, एक बीवी से उसके शौहर ने कहा मैं तुम्हारे लिए जान निछावर कर दूंगा। सारी चीज उसने पूरा किया, आखिर में वो गर्दन कटवा लिया। तो गर्दन कटवाने के बावजूद उसकी बीवी बोली कि थोड़ा सा और ऊपर करना चाहिए था, 2 उंगली। मैंने यही हाल हो रहा है, हमने सारी जिंदगी वहां के लिए वक्फ कर दिया, हम आपको और अब कुछ नहीं कह वही रहे, 2 इंची वाला मैटर आ रहा है। नहीं। आपने ऐसा कर दिया। आपको मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ और ना मैं कहना चाहता हूँ। जो आप लोगों ने किया है वो आपको मैं शुक्रगुजार हूँ, आप दोनों का। हाँ, जिन जिन लोगों ने यहाँ खिदमत की मैं उनको शुक्रगुजार हूँ। बस अब तक आप जी आप रहिए, ठीक है। आप शायद कोई, जी बिल्कुल सही बात है। और आप लोगों ने जितना किया, इलाके में बंजर जगह पर रह करके, जी जी जी, इस चीज़ का मैं खुद शुक्रगुजार हूँ। इतनी मुशक्कत झेल करके, इतनी परेशानियों को टप करके हमने जो कौम की खिदमत की है, वो लोग आज इस चीज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इसको फरामोश करने में क़यामत आ गई। बिल्कुल, मैं इसके शुक्रगुजार हूँ, मैं इसका कोई मुखालिफ नहीं हूँ। बल्कि आप जो शरीयत के काम के खिलाफ काम करेंगे तो हम चुप थोड़ी रहेंगे। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह लेके बैठे थोड़ी हैं, यहाँ हम लोग नहीं चल पाएंगे। ठीक है, आप हर बात, हम ये नहीं करें आप हमारा ऐसा माहौल नहीं है। और कम से कम आप निकाह तो नहीं पढ़ा सकते, जिससे जो उसूल है, जो उसूल से कम आप बच सकते हैं। निकाह नहीं पढ़ाते हैं, जिसका निकाह पढ़ाते हैं उससे हम आशना करते हैं उसको, समझे? तजदीद ईमान करते हैं तब पढ़ाते हैं, वरना एक नहीं दिखा पाएगा। किसी के कहने पर कहा कि इतना फॉर्म कर रहा है। मैं किसी के कहने पर नहीं, हमने देखा है तभी तो मैं कह रहा हूँ। तो कहा कि हज़रत सुना है कि मेरे पास वीडियो है, मेरे पास रिकॉर्ड है। बिल्कुल, ये सिर्फ नुक्ता है, सुनने का नुक्ता नहीं है, ये सिर्फ नुक्ता है। और ये किसका नुक्ता है वही बता दे रहा हूँ, ये हासिदों का नुक्ता है। हमारे उरूज, हमारी बुलंदी को देखना पसंद नहीं कर रहा है। देखना तो हमारे यहाँ की इस्तिकलालियत को देखना नहीं चाहता है। देखना तो आप नहीं चाहते, हमारी इस्तिकलालियत को देखना नहीं चाह रहा। आप मुझे देखना नहीं चाहते। उसे तस्लीम है, लेकिन हमारी इस्तिकलालियत को देखना नहीं चाह रहा। हर उस्ताद चाहता है कि मेरा शागिर्द ऊंचा बढ़े, मगर आपका हाल यह है कि मेरा शागिर्द ऊंचा ना बढ़े मुझसे। हम तो दुआ करते हैं। दुआ क्या करते हैं? हमारे शागिर्द लोग और बुलंदी अता फरमाए, शरीयत के खिलाफ काम करके। तो आपको शागिर्दों को, शरीयत को आप उस्ताद शागिर्दों को बड़ा बनाया, हाँ, काबिल बनाया आपने, और आप ही गलत करेंगे तो क्या शागिर्द खामोश रहेगा? नहीं हो रहा है, बता रहा हूँ मैं, गलत नहीं हो रहा है। अब एक ही वही कर रहा है, हुट्ठी वाली बात करेगा तो कोई बात नहीं। हम कट्टरपंथी के आपको नहीं रहने के लिए कह रहा हूँ, ये ना आप रह भी नहीं पाएंगे यहाँ। कोई बातें करे तो नहीं हो पाएगा। नहीं, कट्टरपंथी नहीं रह पाएंगे आप, मुझे पता है, मगर कम से कम जिससे जो उसूल है, जिसका इनकार कुफ्र है, उसूल के खिलाफ नहीं है, उसूल के खिलाफ है काम ये। तुम बताएगा तो अपनी बात करो। कह रहा है उसूल के खिलाफ, तुम कह रहा है उसूल के खिलाफ हो रहा है, हम कह रहे उसूल के खिलाफ नहीं हो रहा है। आप बताइए उसूल के खिलाफ नहीं हो रहा है। अब कैसे नहीं हो रहा है बताइए कैसे? हम जिसका भी निकाह अगर पढ़ाए होंगे उसका मैंने तजदीद ईमान किया, मैंने उसकी बातों से वाकई उसको रुजू करवाया। आप बोलो उसूल के खिलाफ हो, अब मानने के लिए जब तैयार नहीं होगा तो फिर बात ही नहीं है। कौन पैसा देकर मनवाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कौन पैसा देकर मनवाएगा? तो भी तो इस दौर में जो उसको, जिनको भी आप निकाह पढ़ाएं, इससे आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। निकाह पढ़ाने से बच जाइए, बस मेरा कहना ये, इसलिए कि वो जो है कुफ्र जो है लाजिम लौटता है, बस इससे लौट जाइए, बाकी आपके साथ में। निकाह करने के बाद सारी बातों से आशना करके उसको रुजू करने के बाद भी नहीं पढ़ा सकते। बिल्कुल, वो रुजू नहीं रहा उसको तो आपके मुंह पर कह दिया, हाँ ठीक है। और आप तो ये तो नहीं कहते हैं कि अशरफ अली थानवी की जो इबारतें हैं उनसे मैं रुजू कर रहा हूँ, फलां की साहब की इबारतें हैं मैं उससे रुजू कर रहा हूँ, ये तो कहते नहीं होंगे। हाँ, मैं कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा दिए, 3 कलमा 4 कलमा जो भी पढ़ाना था, उसके बाद आपने निकाह पढ़ा दिया। ये तो होता है हर जगह। मोबाइल में होगा तुमको दिखाते हैं। और कौन मौलाना लोग दूर है हम लोगों से?
इल्लत उसकी बता, एक बात तो हो गई, और दूसरी बात बताओ। दूसरी बात क्या बताएंगे? सारे लोग तो सब मेरा मतलब मेरा ये मैं ये चाहता हूँ सब लोगों में इत्तेहाद हो, और इत्तेहाद ही अच्छा है। इत्तेहाद तुम नहीं कर पाएगा। क्यों इख्तलाफ है? इसके वजूहात होंगे, इसीलिए तो। वजूहात क्या हो? वजूहात क्या हो? जी गांव के लोगों ने तुमको तकरीर करने से मना किया जी उनके कहने पर तुम बैठ गया, जी खाना हमारा बंद कर दिया। जी अब तुम क्या कर सकते हैं? जी हम खाना कहाँ का जी हम बात कहाँ की? अब मार कहाँ? मार हम कहाँ नहीं रहे हैं। खाना इसलिए बंद करूंगा जब तक आप लोग रुजू नहीं करेंगे, तब तक मैं खाना बंद रखूंगा। एक बार मैं जब तक आप लोग रुजू कोई आदमी अगर मदसे के पैसा खा गया, उससे कमेटी के लोगों ने मांग लिया, बुरा हो गया, खाना बंद। तो ये इसकी कोई बात नहीं हो सकती। मैं जब तक आप लोग रुजू नहीं करेंगे तब तक मैं आपको खाना नहीं खिलाऊंगा। बस मेरा आज के सुन लीजिए, कोई अपने आप को राज़िक ना बने। हम रज़ाक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने किसी को रिज़्क़ का दरवाजा बंद नहीं किया है, जो बंद किया है करने दे, बिल्कुल उसे कोई हर्ज नहीं है। जी जब तक कि मौलाना लोग दूर हो गए, अब दूर हो गया तो कोई पैसा मांग लिया, दूर हो गया तो हो गया, उसमें हमारी मैं दूरी इसलिए किया था चंद दिन पहले से। मैं इसलिए दूरी इख्तियार किया था कि आप लोग शरीयत के खिलाफ काम कर रहे थे, और मैं आज से खाना नहीं बंद करना चाहता हूँ। मैं 3 साल पहले जब मेरी दादी जिंदा थे तभी मैंने कहा था खाना बंद कर दिया, ऐसे उलमा का जो बदमज़हबों का निकाह पढ़ाते हैं, कर दिया मैं उसी दिन बंद करने वाला था। हाँ, और जब तक आप लोग तौबा नहीं करेंगे तब तक मेरे घर से खाना नहीं आएगा। जब तक आप लोग रुजू नहीं करेंगे तब तक आप लोग में खाना नहीं जाएगा मेरे घर से। रुजू करेंगे, और रुजू करेंगे तब आपको मेरे साथ और मैं आपके साथ। तो ये भी बात सुन ले, मोहताज हम लोग नहीं है। हम मोहताज भी नहीं है। कहाँ कह रहे हैं कि कोई काफिर क्या मोहताज होता है क्या? किसी का मुशरिक मोहताज होता है? अल्लाह का हर जो है मखलूक रिस्क दिया जाता है। मैं कोई किसी थोड़ी को कोई मैं थोड़ी कह रहा हूँ आप मेरे मोहताज है या आप फलां चीज़ फलां आदमी फलां का मोहताज है। अल्हम्दुलिल्लाह सबका अल्लाह ताला रिस्क देता है, खाता है सब लोग। काफिर मुशरिक भी खाता है, जहन्नम में जाएगा वो भी खा रहा है, जन्नत में जाएगा वो भी खा रहा है। और आपकी ये मोहब्बत में मुझसे जो है छोटे ही में थी, और आप अभी तक चंद दिन साल से मैंने आपके दिल से आपकी ना ताज़ीम रही मेरे दिल में, ना मोहब्बत। क्यों नहीं रही? इसकी वजह यह है कि आपने जो है आपने जो शरीयत के खिलाफ काम किया, आपने शरीयत के खिलाफ काम किया। बिल्कुल अल्लाह इज्जत देता, अल्लाह जिल्लत करता है, मगर आपने शरीयत के खिलाफ काम करेंगे तो क्या आपका शागिर्द आपका मुवाफिक रहेगा? आपकी इज्जत क्या करेगा? जब तक आप रुजू नहीं करेंगे। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, तो शरीयत के खिलाफ काम कर कहेंगे अल्लाह तो इज्जत देने वाला है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। अब मैंने तुमको अपने ज़बान हाल से बता दिया, कोई काम उसूल के खिलाफ नहीं होता। उसूल के खिलाफ हो रहा है, और तुम अपने दिल में उसको बैठाए रखेगा तो या बैठाए रखो। हम बैठाने के लिए कर रहे हैं ना, बैठाए रखा है तो बैठाए रखो। आप रुजू करने में आपको क्या जाता है? ठीक है भाई, हमने गलत किया, टीम रुजू कर रहा, कोई बात नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप रुजू करने से कोई किसी की इज्जत नहीं घट जाती है। आप रुजूनामा लिख दीजिए, फौरन रुजूनामा लिख करके आप मुझे दे दीजिए, मुझे पेश करें आप रुजूनामा। तुमको इसका फर्क क्या है? तुम्हारे आपने दे देंगे, आपने लिखा। आप मुझे मत दीजिए, किसी उलमा के दरमियान बैठ के रुजू कर लीजिए। आप किसी आलिम की बात नहीं है, मैं जितने उलमा है सबको बुलाऊंगा। उसूल के खिलाफ कोई बात होगी, उसूल के खिलाफ बात, उसूल के खिलाफ ही हो रहा है जी, उसूल के खिलाफ काम हो रहा है। और ये किसी का फतवा दिखा दीजिए जो आजकल के काम नहीं करता, इसी वजह से सर बुलंद करके चलता है। देखते हैं ना कितना सर बुलंद है, उसूल के खिलाफ काम कर रहे हैं। बचपन ही से देखते रहे हैं, जाहिल थे तो कुछ नहीं जानते, तो क्या देखते रहो, जैसे चल रहा था देखते ही जाओ। कौम की इस्लाह इस तरह नहीं होती है। देवबंदी का निकाह पड़ा है कट्टरपंथी से, तो कट्टरपंथी आपको नहीं करने के लिए कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं नॉर्मल ही रहिए। आप इस्लाह करो ना, आप नॉर्मली आप बता रहे हैं तुमको उसूल के खिलाफ बात नहीं हो रही है, 1000 मतलब बोल चुका, फिर भी उस बात को तुम रगड़ रहा है, तो कट्टरपंथी तुम्हारे अंदर आई ना। हम कट्टरपंथी करना वो अलग बात है। आपका मामला कम से कम ये तो कह सकते हैं कि हम आजकल के वहाबी का निकाह नहीं पढ़ाया जा सकता। कोई ऐसे फतवा दिखाइए जो आजकल के वहाबी के एकदम जनपड़ गवार है, फतवा निकाह पढ़ाया जा सकता है। किसी मुफ्ती का फतवा दिखा दीजिए मुझे, मैं मानने के लिए तस्लीम कर रहा हूँ, अभी तस्लीम करूँगा। अब एक बात कान खोल के फिर से सुन ले जी।
जिस आदमी का तजदीद ईमान करके सारी बातों से रुजू करके उसको पढ़ाया जा सकता है कि नहीं, ये फतवा मंगा लो जाओ। नहीं, आप जब तक ये नहीं कहेंगे कि उलमाए देवबंद का जो अकीदा है उससे मैं आपको रुजू कर रहे हैं, क्या कहा जाता है वहाँ पर? नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जाता, उलमाए बरेलवी के जो कहा ही नहीं जाता, कहा ही नहीं जाता है। हजारों मैंने निकाह देखा है, नहीं कहा जाता, बस खाली कलमा पढ़ा देते हैं, कलमा पढ़ाया चलो निकाह सुन लो और उसके बाद खत्म मामला, ये होता है जी। जो मैं बोल रहा हूँ बेकार है, ऐसा न कभी सुने हैं न कभी हुआ है। आपके अपने दादा से पूछ लेना। क्या पूछे हैं? तो हर निकाह में हर मजलिस के वकील रहते हैं वो। बस मसला मेरा यही है कि आजकल के जो वहाबीन के निकाह पढ़ाएंगे तो क्या जायज़ हो जाएगा? हाँ में नहीं में जवाब दीजिए, उसके बाद मैं चलता हूँ। जवाब दे दिया, निकाह पढ़ाया जा सकता है। उसका तजदीद ईमान के बाद सारी बातों को रुजू करेगा, निकाह पढ़ाया जा सकता है। सारी बातें उलमाए देवबंद का कायद से रुजू करेगा तब हाँ, तो वो सब लोग रुजू किए हुए हैं। तो जिसका पढ़ाया वो रुजू किया हुआ है। ये जुमले बोले ही नहीं जाते हैं और इस जुमले को बोलना एकदम बाद में तुम वाजिब है। मुर्तद हो जाएगा तो उसका जिम्मा अली बख्श कादरी लिया है क्या? ये बोला ही नहीं जाता होगा, ये तो यकीन है, पक्का है। अब उसके बाद जब बात आई मामले फंसने की तब हाँ बोलता हूँ, ये ऐसा थोड़ी होता है शरीयत में, ऐसा थोड़ी होगा। जो शरीयत है वो शरीयत है सर, शरीयत जी, इससे कोई हट नहीं सकता है। शरीयत में रास्ता निकालने की कोई इजाज़त नहीं है किसी को, नहीं किसी को हक भी नहीं है। कौन कहता है? निकाल रहे तभी तो हम यहाँ पर आए, वरना हमको यहाँ आने की क्या इजाज़त, क्या ज़रूरत थी मुझे? अरे निकालने की क्या बात, फिर तुम वही बात कर रहा है। शरीयत में रास्ता निकालते थे हम लोग यहाँ रहते, आदमी को नजर नहीं आएगा कि ये रास्ता निकाल रहा है शरीयत। अनपढ़ गवाह आदमी क्या पता चलेगा? सब लोग अनपढ़ हैं तो क्या पता चलेगा कि गू होता है और मिठाई होती है, थोड़ी होता है। यहाँ सब अनपढ़ है, करीब करीब तो सब लोग अनपढ़ ही है। सब लोग क्या, कौन क्या जानता है? हाँ, ये तो तुम ही जानते हो। जो जाना खामोश इख्तियार किया, मगर हम खामोश इख्तियार थोड़ी करेंगे, सब लोग तरह थोड़ी हम हैं। सब लोग जानते हैं, मगर सब लोग खामोशी इख्तियार किए, मगर अब खामोश समझ जाना चाहिए। क्यों खामोशी इख्तियार करें? शरीयत के खिलाफ मेरे मौजूदगी में मेरे सामने शरीयत के खिलाफ कोई शख्स का जितनी बातें और सारे चीज शरीयत के खिलाफ है। शरीयत के खिलाफ जाहिल करे तो अलग उसका हुक्म लगता है, मगर जब आलिम शरीयत के खिलाफ काम करे, कौन नहीं पढ़ा रहा है, कौन नहीं जो बिल्कुल जो हजरत पढ़ा रहा है वो उन पर सब पर हुक्म है और सब पर एक ही हुक्म लगता है हजरत। चाहे आप हो, चाहे मौलाना शमीम हो, चाहे मौलाना बहाउद्दीन हो, चाहे मेरा अब्बा हो, चाहे मेरा दादा हो, कोई भी हो, एक हुक्म लगेगा और एक वो जो उनको तौबा लाजिम है। मैंने सबको कहा। हाँ, मौलाना शमीम साहब कहते हैं कि उन्होंने कहा मैं नहीं पढ़ाता हूँ। अब सारे लोग तौबा कर दिए, बिल्कुल तौबा किए, तो हम लोग जो बगैर तौबे के अब तौबे के हैं कि अब कौन जानता, खुदा बेहतर। मगर हमारे अपने जो है कुफ्र आम किया, कुफ्र आम मैंने कुछ सोच के नहीं आया। मैंने कहा कि बस सिर्फ मसला पूछना है और उसके बाद आपने जवाब देना है। अब मैं जो निकलना दे दिया ने, मतलब जायज है ना क्या पढ़ाना? फिर कोई बात, ये तो जुमला काहे पकड़ता है? तुम क्या लिख के देंगे आप कि तजदीद ईमान के बाद सारी बात रुजू करने के बाद निकाह पढ़ा सकते हैं। ये तो जुमला क्यों पकड़ता है? ऐसा किसी का मैंने नहीं सुना है। नहीं सुना है तो बातें खत्म करो। हमें तो हम तो कहीं जाते ही नहीं ना, तो फिर मामला ये है। तुमने देखा नहीं है, तुम्हारी कोई शहादत नहीं है, फिर इतनी बात पकड़ क्यों? हर आज के जितने देवबंदी हैं उनको ये कहा ही नहीं जा सकता। और आप हर चीज में मिला करके कह रहे हैं ना, मिलाओ सब मिलाओ, दाल भात चटनी सब मिलाओ, तो वहां भी मिलाने के लिए ये जुमले नहीं कहते होंगे डर के खौफ के नाते कि अगर अरे ये हो जाएगा, इसलिए नहीं कहते होंगे। जब आप खुल करके आम नहीं कह सकते तो फिर उनके सामने कैसे कह सकते हैं? नहीं है जी, जो अली बख्श कादरी के पास नहीं पढ़ा के साथ बोला, तो जब दबदबा नहीं है तो फिर डरना किस बात का होगा? तो क्यों नहीं खुल के अकायद बता देते हैं? डरना नहीं है फिर दबदबा किस बात का? डरते नहीं है तो क्यों ना खुल के अकायद बता देते हैं कि आपके फला अकायद है, ये देख लो किताब में। खोल करके हम इसलिए नहीं बताते हैं
इंतजार होगा। आपका गांव ऐसा है जहां पर सारे लोग एक दूसरे के गांव में घुसा हुआ है। हाँ, घुसा हुआ गांव में ना, तो निकालने की जिम्मेदारी आपको है। निकाल रहा हूँ धीरे धीरे। कहाँ निकाल रहा है? मसला तो कई मतलब 12 तकलीफ हुई, 12 तकलीफ हुई इस बार। आज पूछ लेना किसी से, मैं बचपन ही से वही सुन रहा हूँ कि अल्लाह मस्जिद, हमारा मकसूद से पूछ लेना हाँ कि कई दफा तकलीफ हुई इस बात पर। किताब दिखाया, किताब दिखाना चाहिए फला फला। तो फिर तो अगर आप बोल चुके हैं, अगर तो मैं बोलता हूँ तकरीर में, तो लोग भड़कते क्यों हैं? वो तुम्हारा अंदाज अलग है, अंदाज अलग कुछ नहीं है। हमारा अंदाज अलग है। हम हिकमत से काम लेते हैं, तो तुम बगैर हिकमत से काम लेना चाह रहा है। हिकमत से कुछ कोई नहीं, भी काम करेगा तो हिकमत से करेगा, धीरे धीरे होगा ना। तो हम धीरे ही धीरे करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं रबीउल अव्वल का जुलूस कोई जानता नहीं था, बिल्कुल धीरे धीरे निकला, तो आज सारे देवबंदी लोग शामिल हो रहे हैं। देवबंदी लोग शामिल है कि किसी ने कमेंट में क्या कहा था, देखें कमेंट? अरे पूरे एक बोरे आलू में एक सड़ा निकल गया तो उसकी कोई एतबार नहीं है। जवाब देना। वहाँ जैसा सड़ा हुआ देवबंदी गांव में इस मदरसे से एक तालिब इल्म निकला, वो सुन्नी बन के अभी है, वो अजमेर शरीफ में है। बहुत है तो इस तरीके गोरगांवा जैसा, अभी जहाँ से निमुआ जैसा, जहाँ से देवबंदियत की इब्तिदा हुई, देवबंदियत फैली, जहाँ से आज पूरे इलाके में जितना सुन्नी उलमा देख रहा है ना, सारे लोगों पर इस मदरसे का एहसान है। बिल्कुल है, एहसान तले दबे हुए हैं, सही है। आज जितने जो खड़ी टोपी देख रहा है ना, जी इस मदरसे का करम है, वो हमारी खिदमत है। वो जी आपकी खिदमत सर आंखों पर, उसका मैं कोई इनकार नहीं कर रहा हूँ, उसका कोई इनकार नहीं है। सिर्फ आप इससे हिकमत की बुनियाद पर इसको आप इकरार कर लीजिए और इससे आप रुजू कर लीजिए, बाकी सब मैं आपके साथ। सारी बात रुजू है बाबू, समझे ना? जो बात मैं बताया उसको दिल में बैठा लो कि उसूल के खिलाफ कोई बात नहीं होती है यहाँ पर, और जो हमारी गलत फहमियाँ थी हम उससे दूर करते हैं। ऐसे ये बोलो, उसूल के खिलाफ कोई बात नहीं होती है। तो निकाह पढ़ाते हैं आप, पूरा जो है पूरी बात कहते हैं, पूरी बात बोलते हैं। अच्छा हम मुँह पर कहेंगे ना। उसके लिए बिल्कुल मुतमईन रहो, है ना? और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमारे गांव को और फरोग अता फरमाए और इल्म की बरकत से माला माल फरमाए। मजहब इस्लाम का काम हो, दिन का काम हो, सारे लोग एक होकर रहें, बिल्कुल होनी चाहिए, और धीरे धीरे काम होगा। आज देखो कुछ उसका भी बच्चा आज हमारे मजहब में आ गया, मसलक में। किसका? उसका भी, जिससे कि जमुआ का बेटा है, एक हुआ ना काम। इस तरीके से अभी कई बच्चे वहाँ शमीम साहब लेके गए हैं, कई बच्चे को मंजर ले गया है, कई बच्चे को मौलाना इलियास ले गए हैं, और कई बच्चा इधर उधर और भी गए हैं, जानकारी नहीं है। सारे काम, सारे कारनामे, ये सारा काम हो रहा है, सारे कारनामे ठीक है। अब कट्टरपंथी दिखाएगा तो नहीं चलेगा। हम कट्टरपंथी नहीं करना चाहते हैं, चाहते भी नहीं, कट्टरपंथी चलेगा बस मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मतलब जिससे यहाँ से और कुछ बोलो ही मत, सारी बात मैंने बोल दिया। जिससे यहाँ से बिल्कुल इतना ही इत्मीनान होकर जाओ कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई काम उसूल के खिलाफ नहीं होता है और होगा भी नहीं। बस इतनी बात आपको बोल दिया। समझे? आप मुझे तेज दौड़ने वाला घोड़ा ही ठोकर खाता है। आप रिकॉर्ड सुनाएंगे निकाह का? रिकॉर्ड सुनाने की जरूरत नहीं है। आपको कहने से तो फिर हम नहीं मानूंगा ना, आप रिकॉर्ड सुनाएंगे। कहने से नहीं मानेगा तो आप क्या कर सकते हैं? आप रिकॉर्डिंग कर लेंगे, जहाँ निकाह पढ़ने जाएंगे। पैसा देंगे? नहीं, अब मैं पैसा क्या दूंगा? तो फिर जब कहने पर भी नहीं माने तो आप क्या कर सकते, बोलो? मुझे इस बात की यकीन नहीं हो रहा है ना। अब इत्मीनान नहीं हो रहा है तो अब दिल में घुस के कौन इत्मीनान दिलाएगा? आदमी तो जुबान ही से इकरार करके बताएगा ना। इकरार बिल लिसान ही होता है ना।
पहले आपने दूसरी बात कहा, फिर उसके बाद आपने दूसरी बात कहा। पहले तो एक ही बात रहती है अली बख्श की। पहले आपने दूसरी बात कहा कि कौन वहाबी है, फिर उसके बाद बात बदल दी। इससे क्या समझ में आता है? ये तुमसे निखार पैदा कर रहा था कि तुमने किसको वहाबी समझा, किसको देवबंदी समझा, हम तो कौन गैर मुकल्लिद है, कौन मुकल्लिद है। सब जाहिल है इसके हवाले से। ये बात अभी भी कह दे रहा हूँ, सारे लोग वहाबी देवबंदी नहीं है, अक्सर गुमराह है। तो गुमराह को भी तो निकाह नहीं, गुमराह को भी तो निकाह नहीं पढ़ाया जा सकता है। बोल देना सबको, गुमराह को भी तो निकाह नहीं पढ़ाया जा सकता है, उसका भी तो निकाह पढ़ाना कुफ्र है। आप रुजूनामा लिख लें, कोई बात नहीं, रुजूनामा लिखने में क्या है? रुजूनामा तुमको क्यों देगा? लिख करके आप मुझे ना बिल्कुल आप रुजू करेंगे तभी तो हम लोगों को दूसरे को बताएंगे कि आपको मेरे सामने आप कुफ्र करेंगे, दूसरे सामने तौबा करेंगे, तौबा मानी जाएगी। मैं तो यही जानता हूँ कि आपने मान ली कोई काम अगर खिलाफ हो गया शरीयत के, हम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे, तुम्हारे सामने रुजू करेंगे। तो मेरे सामने आप रुजू नहीं करेंगे तो मैं क्या समझूंगा आपको? क्या समझेंगे? हम तो ये समझ रहे तुम्हारे सामने हुआ है ये सब, जितना भी हुआ है। तो मैं देखता आ रहा हूँ शुरू से, बचपन से। निकाह तुम्हारे सामने एक भी हुआ है? बहुत सारे मैं देख रहा हूँ, जा रहे हैं, देख नहीं रहा हूँ कि आँख बंद करके रखते हैं क्या? जब कोई काम होता है तो अल्लाह से तौबा किया जाता है, तुम्हारे सामने क्यों रुजू करेंगे? अल्लाह ऐलान को अल्लाह ऐलान तौबा करना है। यही नहीं कौम के सामने जो निकाह पढ़ा है तो कौम के सामने तौबा नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह का ऐलान कुफ्र होता है, वहाँ हम तो खामोश रहते हैं। मौलाना मक्खी साहब ज़्यादा जानते नहीं हैं। मौलाना मक्खी साहब को कोई वजह से खामोश है? क्या वजह है? बोलना चाहिए, नहीं बोलते हैं। वो अगर बोलते हैं तो मार दिया जाता है, तुमको नहीं मार रहा है। रुजूनामा चाहिए, रुजूनामा अगर मिल जाता है तो उसके बाद काम होगा। रुजूनामा जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो क्या करते हैं? कोई कुछ मतलब नहीं रहेगा। क्या करते हैं? मदरसा छोड़ दें? नहीं, मदरसा मत छोड़िए, आप तो ये नहीं करना मदरसा छोड़ दें, आप ये कर दें, हम चले जाते हैं तब? नहीं बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल ना जाएं। वही काम तो कर रहा है। आप जो चीज़ गलत किए उसके ऊपर रुजू तुमने अभी क्या कहा? रुजूनामा नहीं दे, फिर अगला कदम। अगला कदम ये उठाऊंगा तो पूरा मामला। इसका मतलब ये है कि तुम जो सा हमको ये करेगा? बिल्कुल कुछ नहीं करूंगा। आपको दूर इख्तियार करूंगा ना, आपको क्या डराएंगे? डराएगा, धमकाएगा, मारेगा, पीटेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गाली गलौज, शिकवा शिकायत करेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल ये कर सकता हूँ, आपको दूर इख्तियार करूंगा और उलमा को बता दूंगा ये ऐसे करते हैं, इसको ऐसे इन पर जो है ये हुक्म है और इनसे मिलना जुलना कह देना, समझा ना? ये भी बात बोल देना और कहना कि हमसे ये भी बात बोले वो जी। तो उसूल के खिलाफ काम नहीं होता है। जहाँ होता है ये बात कह के ही निकाह पढ़ाए हैं, ये बात बज़ाहिर आप लोग फिर बज़ाहिर मत करो, हुक्म ज़ाहिर पर लगता है सर, बातिनी पर हुक्म नहीं लगता है ना सर। तो जाहिर पर जाहिर ही कर रहा हूँ ना। आपने तो पूरी तो मन में नहीं बोला हूँ। तो लोग जो उलमा आप तो बदगुमान हो रहे हैं, बदगुमान हो रहे तो आपने वो किसी हसद की बुनियाद पर बदगुमान है, ये बात जान ले। तो आपको मस्जिद वाला ऐलान वो कह दिया, वो तुमने मान लिया, हम जो कह रहे हैं वो नहीं मान रहे। वो है कि हम ही काजिब हैं, काजिब नहीं बल्कि कज़ाब हैं। हम कैसे समझे कि आप सादिक हैं? मैंने हम ही काजिब हैं और सारे लोग जो तुमको सुनाया, तुम तो मजलिस में हो नहीं, जो तुमको सुनाया वो सादिक है, यानी हर एतबार से हम झूठे हैं। आप झूठे नहीं, आप तो फिर जब कह रहा हूँ तो फिर मान लेना चाहिए ना। ऐलान गलत कर रहे तो ऐलान ही आदमी समझेगा, पता नहीं आपको क्या हो, आपको क्या दिल में है नहीं। ऐलान अगर होता तो सारे लोग खामोश रहते, तो खामोश कुछ वजह से है। क्या वजह?
अब वो उन लोगों से पूछेंगे, उनके दिल से पूछिए उन लोगों से। हाँ, क्या बोल रहे हैं? उन लोगों को पहले पूछ लिया, नहीं, पहले आप रुजू करें, उसके बाद आगे बात करें। पूछो कि आप लोग खामोश क्यों। रुजू करें, उसके बाद इत्तिहाद हो उलमा में, उसके बाद फिर आगे कुछ भी काम होगा। देखा है क्या? आप खामोश क्यों? इससे वजह कुछ क्या?